تو ان کے جو مشنریز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اسرائیل میں، فلسطین میں یہودیوں کو کرتے ہیں، دیگر مذاہب کو کرتے ہیں وہ جا کے پریچنگ، بلکہ وہ سب سے زیادہ جو بدھ مت ہے نا ان میں ان کا زور ہے، چائنا وغیرہ میں اور اس علاقے میں۔ آپ کا سارا زور صرف اسلام پر کیوں ہے؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ ہم 70 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ بھائی 70 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ تو میرا سوال ہی نہیں تھا، آپ 70 چھوڑ کے 170 کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو دلیلیں آپ قرآن اور حدیث سے گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، وہ آپ وید اور گیتا سے کیوں نہیں کرتے؟ بائبل سے کیوں نہیں کرتے؟ جو بدھ مت، جو مہاتما بدھ کی کتاب ہے کیوں نہیں؟ نبی پاک کی احادیث سے، اسلامک لٹریچر سے جتنا ظلم کرتے ہیں دیگر ادیان کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھا میرا سوال۔ اب ایک اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ یہ جو بہاولہ ہے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور جو قرآن مجید میں ہے وآخرین منہم، رسول پاک ساری دنیا کے لیے ہیں۔ رسول پاک کی بعثت ہونی تھی، ہندوؤں سے ہم نے مناظرے کیے ہیں، سرما چشمہ آریہ، وہ کتاب ساری مرزا صاحب نے ہندوؤں کے بارے میں لکھی ہے، میں نے پڑھی ہے، سارے دلائل اس میں دیے ہیں، انہوں نے اعتراض کیے تھے، اس کے جواب دیے ہیں۔ ابھی میں نے کل ہی پڑھی ہے، وہ بھی پوری، پہلے بھی پڑھی تھی، اب پھر پڑھی ہے۔ تو یہ بات اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے لو تقبلہ والی، رسول پاک پہ نازل ہوئی کہ اگر تم بھی میری طرف ایک بات جھوٹی منسوخ کرو گے میں نے دائیں ہاتھ سے پکڑ اشارہ کاٹ دینی ہے۔ کوئی جھوٹا نبی نہیں بچا جب سے دنیا بنی ہے، یہ آپ کے ایسے دعوے ہی ہیں۔ اگر جھوٹا بچ جائے تو نعوذ باللہ قرآن جی کی آیات غلط ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹے جتنے آئے سارے اللہ نے ذمہ لیا، میں ماروں گا دائیں ہاتھ سے، اللہ سے کوئی ہے موقع دے دیں، تگڑا؟ کوئی ملک کوئی نہیں اللہ سے تگڑا۔ ٹھیک ہے، اب موقع دے دیں مجھے۔ پہلی تو بات جو آپ نے کہی ہے کہ بہاءاللہ کا دعویٰ خدائی کا تھا، میں کہتا ہوں آپ کے مرزا صاحب کا بھی دعویٰ خدائی کا تھا اور خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ تھا۔ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے، انت منی بے منزلت اولادی انت منی بے منزلت ولدی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے بڑھ کر مجھے مخاطب کر کے کہا گیا ہے، جن لفظوں سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا اس سے بڑھ کر۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ خدا کا یا خدا کا بیٹا ہونے کا، آپ مان لیں گے؟ اسی طرح سے جو آپ کہیں گے کہ بہاءاللہ کا دعویٰ خدائی کا ہے وہ تو نہیں نہ مانا جائے گا۔ بہائی سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ بہاءاللہ رانی کو خدا مانتے ہیں؟ وہ کہے گا نہ اس نے دعویٰ کیا خدائی کا، نہ ہم اس کو خدا مانتے ہیں۔ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے غلام احمد داؤد کی، وہ بہائی ہیں، ان کی ریکارڈنگ میرے دوسرے موبائل میں، یہاں میں پلے کر سکتا ہوں۔ عامر بھائی ایک بلا لیتا ہوں میں ابھی، اس کو شیئر کرتا ہوں۔ نہ وہ خدا مانتے ہیں نہ ان کا خدائی کا دعویٰ ہے، تو یہ تو بات بالکل غلط ہے آپ کی۔ آپ کا الزام ان پر ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ دار ہیں، میرا بھی آپ پر الزام ہوگا، تو نہ آپ نے ماننا ہے نہ انہوں نے ماننا ہے۔ اس کو چھوڑ چھاڑ کے جو دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ بھائی ہم نے سرما چشم آریہ میں مناظرہ کیا تھا اس کے ساتھ ماسٹر مرلی دھر کے ساتھ، مجھے پتا ہے ماسٹر مرلی دھر کے ساتھ جو آپ نے مناظرہ کیا تھا اس میں اپنے آپ کو بطور کرشن پیش کیا تھا کہ میں کرشن ہوں۔ کیا آپ نے اس کو اپنا مقام کرشن ہونے کا پیش کیا تھا؟ نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے مرزا صاحب کا دعویٰ ہے موعود کل ادیان ہونے کا، تو کسی ایسے بندے سے مناظرہ کر کے اس کو اپنا اس کے دین کا موعود کر کے پیش کر کے دکھاؤ تو صحیح۔ ماسٹر مرلی دھر مر گیا، اب ہندو تو ہے نا، کسی ہندو کے ساتھ مناظرہ کر کے وید اور گیتا سامنے رکھ کے اپنا دعویٰ وہاں سے ثابت کرو نا کہ میں کرشن اوتار ہوں، دوبارہ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ کسی کرسچن کے سامنے جا کے بیٹھ کے بائبل سے نکال کر اپنا دعویٰ ثابت کرو کہ میں وہ مسیح ابن مریم ہوں یا ان کا اوتار ہوں یا جو بھی ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کا تم انتظار کرے، وہ فوت ہو گئے، ان کے ساتھ کرو۔ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ کرتے کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ ظلم کرتے، اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ زیادتی کرتے۔ یہ جو نا بات آپ آخر پہ لوگوں کو گرم کرنے ظلم کرتے ہو اور رسول پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خود رسول پاک کی بات ہے، اس کا نام میرا نام، وہ میرے نام پہ آئے گا۔ وہ جو آئے گا، رسول پاک آئے تھے ساری دنیا کے لیے نہیں آئے، دین کا غلبہ ہوگا۔ وہ جتنے بھی آپ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں صدیوں کے مجدد، وہ سارے اولیاء اللہ جو یہی کہتے رہے یہ کام مہدی کے ہاتھ سے ہونا ہے 14ویں صدی میں،
14वीं सदी से आगे कोई नहीं गया, और 14वीं सदी पूरी हो गई, 15वीं आधी खत्म हो गई, वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं उतरे आसमान से, जिस तरह यहूदियों के वो इदरीस अलैहिस्सलाम नहीं उतरे। नज़ूल इदरीस का जो अकीदा था यहूदियों का, वो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रद्द किया, ये गलत है, उस जैसा आना है वो यहया अलैहिस्सलाम है। इसी तरह नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा मिर्जा साहब ने रद्द किया, और ये गलत है, उस जैसा आना है, मामकुम मिनकुम, वो तो आ ही नहीं सकते सलाम की तरह, ईसा रसूल अल्लाह बनी इसराइल। और सूरत मैदा में लिखा है क़यामत तक वो जमीन पे आ ही नहीं सकते, और मना है, आ जाए तो कुरान की पे ज़ात आती है। और बहाउल्लाह ने नबी होने का दावा नहीं किया, उसकी कहाँ किताब दिखाओ, उसे इल्हाम वही हुई हो। और जो नेक बंदा होता है, जो आज दिन सारी करता है, नफल पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, अल्लाह कहता है मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, उसका मुंह बन जाता हूँ, उसके पैर, उसके आंखें, तो वो मजाजी रंग में होता है। मार महता इज्र महता, कुरान जी में भी अल्लाह का हाथ तो है, यादुल्लाह बैतली। ठीक है, बस करें ना अब। ओके, देखे ना कैसे कुरान की आयतें कोड करते हैं और उनका तमस्कर उड़ाते हैं, और कहते हैं वमा रमैता इज़ रमैता आया, वलाउ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील आया, फलानी आयत आई, फलानी आयत आई। आयतें जो आप पढ़ पढ़ के लोगों को कहते हैं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि हिंदुओं का वेद क्यों नहीं पढ़ते और गीता क्यों नहीं पढ़ते? अगर क्रिश्चियन होने का दावा है तो उनकी किताब क्यों नहीं खोलते? जो कुरान पाक के साथ जुल्म कर रहे हो, अल्लाह के नबी की उम्मत के साथ ये ज्यादती कर रहे हो, ये उनके साथ क्यों नहीं जाके करते? कौन सी दुश्मनी इस उम्मत से आपने लेनी, इस इस्लाम से आपने लेनी, नबी पाक से आपने लेनी? आप कहते हैं हम नबी पाक से प्यार करते हैं। भाई नबी पाक तो आपसे प्यार नहीं करते। नबी पाक के सामने मुसैलमा कज़ाब और असवद अंसी ने दावा किया। नबी पाक ने ख्वाब में देखा कि दो सोने के जो कड़े थे वो आपने देखे अपने हाथों पर, आपको कराहत महसूस हुई, ये क्या आपने फूंक मारी उड़ गए? नबी पाक ने खुद ताबीर की उसकी। ये है वो असवद अंसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसको खुद अपने हाथों से लिखा, मुसैलमा अल कज़्ज़ाब। नबी पाक ने तो नफरत का इजहार किया उसके साथ जिसने नबूवत का दावा किया, हालांकि वो नबी पाक से प्यार का दावा करता था, नबी पाक को नबी और रसूल मानने की शहादत देता था कि मैं आपको नबी भी मानता हूँ, रसूल भी मानता हूँ। लेकिन नबी पाक ने उससे नफरत और बेजारी का इतना इजहार किया, जब उसको खत लिखा तो लिखा मुसैलमा अल कज़्ज़ाब। कोई हवाला तो लगा हुआ था, मुसलमान के साहब के हवाला तो लगाओ। ओ भाई फड़ो इन्होंने भाई, यार क्यों बंदे उठा रहे हो तस्नीर साहब? ये तो ये नहीं चुप रह सकते, करते जाते हो, ये नहीं चुप रह सकते, इनकी जान निकल जानी सब की। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी तो है, लेकिन आपके बंदे आके बीच में ना बोलो, कुछ नहीं रहा, ना बोलो ना। अच्छा सुनो, मेरा सवाल ये है कि वेद खोलो, गीता खोलो। आ गई है मुसलमान कज़ाब पर झूठ बोल रहे हैं। ओ यार इसको नीचे उतारो समीर भाई, पे जवाब दूंगा। ओ किधर चले गए समीर भाई? आगे मिर्जाई के बातों के बीच में चीखे मारने। असल निचोड़ आ गया। समीर भाई मिर्जाइयों को पकड़ के रखो, इनका अटैक हो जाना नीचे। जी जी, देखो बात के बारी बारी में बात करे भाई, ठीक है? शोर शराबा नहीं मचाना इधर, ठीक है? आराम से बात करे, इल्मी गुफ्तगू करे। हाँ जी हाँ जी, टाइम बेशक लगा दे, एक मिनट। हाँ टाइम लगा दिया करें बेशक, अब्दुल शेख साहब का। अच्छा बात ये हो रही थी कि कुरान मजीद में सारी किताबें आ गई, जो सच है, जो झूठ है वो नहीं आया, क्योंकि कुरान मजीद मुकम्मल हो गया। और कुरान मजीद पहले जो थे, जितनी किताबें सारी खुदा ताला की तरफ से बुलाती थी, लेकिन उस वक्त तो सारे उसमें बातें नहीं है, उनकी हिफाजत का जुम्मा भी नहीं था, इसलिए उसमें रद्दो बदल कर लिया। मैंने भी लोगों ने उसमें करनी है। असल जो कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ताला ने ली है, इसमें सारी आ गई अच्छी बातें सब किताबों की, इसलिए कुरान मजीद के हवाले दे रहा हूँ। कुरान मजीद के हवाले जो हैं वो गारंटी है, खुदा ताला का कलाम है, और बाकी भी खुदा के कलाम थे, लेकिन उसमें लोगों ने रद्दल बदल कर ली है। तो वेद की बातें, बाइबल की बातें, अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी अपने भेजे, छोटी छोटी तलीम थी। असल मुकम्मल तलीम कुरान मजीद में हुई। रसूल पाक सब नबियों के मजमुआ है, रसूल पाक में सारे नबी आ गए, और जो मसीह आना आखिरी ना मिनू, उसमें भी वो रसूल पाक का काम ही उसने मुकम्मल करना है दुनिया में सारी में। ठीक है, सॉरी टाइम हो गया। बात ये है शेख साहब, गुजारिश ये है कि आप ये कहते हैं कि सारी किताबें मुहर्रफ और मुबद्दल हो गई, सिर्फ कुरान ही अल्लाह ताला का महफूज कलाम रह गया। अगर कुरान ही अल्लाह ताला का वो पाक कलाम है
जो सिर्फ महफूज है, तो आप इसके खत्ते क्यों पड़ गए हैं? इसको क्यों मुहर्रफ और मुबद्दल करना चाहते हैं? इसके साथ क्यों हेरा फेरी करना चाहते हैं? अगर कुरान के अलावा दीगर किताबें सारी मुहर्रफ और मुबद्दल हैं, तो आपने कृष्ण होने का दावा कहां से लिया है? कुरान में तो जिक्र नहीं है कि कृष्ण अवतार दोबारा आएगा। कुरान में तो जिक्र नहीं है कि कृष्णों का कोई जो मऊद है मसीह वो दोबारा आएगा। कुरान में तो जय सिंह बहादुर का जिक्र नहीं है। तो आपने ये दावे कहां से लिए? मऊद कुल अदियान होने का जो दावा है, कुरान में तो इस तरह का कोई पाया नहीं जाता। आप असल बात यह है कि कुरान करीम से आपने ये देखा कि बाकी किताबों की तो कोई बुनियाद ही नहीं है, ना लोग उनको फॉलो करते हैं, ना उनमें हमारी कोई जगह है, ना उनकी वहां पर स्पेस बननी है। आपने अल्लाह के इस कुरान को देखा कि ये वो अल्लाह की पाक किताब है जो इस दुनिया में सिर्फ महफूज है, और दीन है तो सिर्फ इस्लाम है, जिसकी तरफ सारी दुनिया आंखें लगा के देख रही है, अच्छी नजर से या बुरी नजर से, लेकिन इस्लाम ही सिर्फ दीन है जो दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो आपने इस पर हमला कर दिया, हालांकि अल्लाह ताला ने आपको पसपा कर दिया, आप कर कुछ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने आपको लहदा कर दिया मुस्लिम उम्मत से, लेकिन आप फिर भी कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के क्या करना चाहते हैं? देखो कुरान में आया वलौ तकव्वला, वो कुरान में आया मैं युतिल्लाह व रसूल, देखो कुरान में आया वमा रमैता इज़ रमैता। मैं कहता हूँ कृष्ण उसकी क्यों नहीं पढ़ते? कोई वेद और गीता की कोई पंथी क्यों नहीं पढ़ के सुनाते लोगों को? उसमें कोई नहीं जिक्र, तो कुरान में तो कृष्ण का जिक्र ही नहीं है। तो आपने दावा कहां से लिया? ये जवाब दे जरा, कृष्ण का दावा मिर्जा साहब ने कहां से लिया? अच्छा लो जवाब लो। वो कुरान जी में है ना, इम्म करियत इल्ला खिलाफ नज़ीर, हर कौम में हर जगह मैं नबी रसूल भेजे। रसूल पाक ने कहा मैं इब्राहिम हूँ, मैं ही देखना मुझे देख लो, इब्राहिम मूसा को देखना मुझे देख लो। रसूल पाक जो अपनी बीवियों का ये यूसुफ की भी मिसाल दी हुई है, तो ये जो मिसालें होती हैं इसको जारी पे नहीं लेते। रसूल पाक सारी दुनिया के लिए आए थे, कुरान जी सारी दुनिया के लिए आया है, और मिर्जा साहब भी सारी दुनिया की तरफ रसूल पाक के खादम होने की हैसियत से, जैसे शीशे में आदमी अपना मुंह देखता है, साथ बीवी बेटियां बैठी हो, कहता नहीं है अंदर चली जाओ, वो असल सलाम रसूल पाक का ही है। वो गलबा इस्लाम का रसूल पाक की पेशगोई के मुताबिक होना था। कुरान जी के बाद जो है सारे वो होना था ना, वो आपके जितने भी बड़े हैं वो ये कहते हैं महामदी के जरिए ये काम होना है, और यही काम मिर्जा साहब करने हैं। आपके जो गलत अकीदे हैं नौज बिल्लाह शिरक वाले, खुदाई के, ईसा अलैहिस्सलाम को आपने जिंदा आसमान पे बैठाया हुआ है, मुर्दे जिंदा करते थे, परिंदे पैदा करते थे, और नबूवत बंद हो गई, इनको सीधा करने आए हैं जो तीन खलीफे नहीं मानते। ओके शेख साहब, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आप वेद और गीता वगैरह खोल के क्यों नहीं हिंदुओं को कहते कि ये देखो कृष्ण के आने का वादा था, ये देखो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बहसीयत कृष्ण उतार के आगे। आपके पास इसका जवाब नहीं है। बेबसी में आप इधर उधर हाथ पांव मारते, फिर कुरान की आयत कोट करते हैं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले आया है, वो आया है, मिन करियतिन आया है, फलाना आया है, फलाना आया है। वो कुरान तो वो पहले ही नहीं मानते। उनके सामने, किसी हिंदू के सामने खड़े होके कौन सी दलील दोगे? ये पढ़ोगे आयत उसके सामने, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले पढ़ोगे? हिंदू के सामने क्या पढ़ोगे? वो वेद की पंथी, वो गीता की पंथी, वो पढ़ के सुनाओ ना। वो नहीं पढ़ सकते। इस बेबसी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, कहते हैं हम तुम्हारे कीदों की। अच्छा फिर छोड़ दो बाकी ध्यान का दावा, कृष्ण का दावा छोड़ दो, जय सिंह बहादुर का दावा छोड़ दो, कृष्णों के लिए मसीह का दावा छोड़ दो, तुम सिर्फ फिर मुसलमानों के कीदे की सलाह करनी है ना, तो कहो कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए आए हैं। मऊदे कुल अदियान का दावा झूठा है। एक मिनट, अगर मऊदे कुल अदियान का दावा झूठा करके साबित, फिर आओ मुसलमानों के अकायद बताओ, जो मुसलमानों के अकायद ना इस्लाह करना, मैं भी कहूंगा कि हाँ ये गलती पाई जाती है। फिर मैं आपसे भी पूछूंगा कि जो खलीफा नूरदीन के घर में बेटा हुआ था मिर्जा साहब के तवीज से, जो मिर्जा साहब ने तवीज करके दिया था, ये तवीज धागा जो आप करते हैं ये कहां से आपने लिया है? ये भी मुझे बताना। जो मिर्जा साहब सजदा कहते थे, मेरे लिए भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सजदे का, ये कहां से शिरक और बिदअत आपने लिया है? आपके कायद की इस्लाह किसने करनी है? चलो आप मुसलमानों के कायद की इस्लाह करना चाहते हो, तो जो आप में गंदी आदतें पड़ गई हैं ये किसने दूर करनी है? दो जवाब। अच्छा, और जो बाबा गुरु नानक थे उनके मतलब बताया हुआ मिर्जा साहब ने, पढ़ लो समीर यार, ये इनकी जानने नहीं चाहिए, नीचे ये दीवारों को लग रहे हैं। हाँ, ये
पता नहीं इसको पकड़ के रखो, इनकी बात चुप रहो, लेके बातें बाबा करो। बाबा गुरु नानक के मतलब आपके भाई ने चुप करके, शेख साहब जी जी आपके भाई ने चुप करके बैठते, उनको कहीं चुप करके बैठे, मैं ठीक ठाक बात कर रहा हूँ। ओ किसे भाई ने बात करनी है तो मैं उसको टाइम दे सकता हूँ अपने वो भाइयों में देख से। रहे हैं कि आपसे कुछ बन नहीं पड़ रहा, इसलिए वो आके माइक छीन रहे हैं आपसे। नहीं बेशक कर ले, मैं एक टर्न मैं ले लिया करूंगा, एक टर्न दूसरा भाई ले लिया करे। ना 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 ना, अच्छा तुसा पंजा बंदे डाल के गल करनी है। नहीं मैं क्या, अगर आपका दिल करता है एक ही बंदे ने बात करनी है, एक ही चलो बंदे ने मैं बात करता हूँ सुनो। शेख साहब थोड़ी देर बाद, एक मिनट शेख साहब, थोड़ी देर बाद टाइम हो जाना। ज़िया रसूल साहब मेरी बात कर ले और करनी। जाहिर है, जोर दे टाइम में, जोर दे टाइम में। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अभी बहुत टाइम है, मेरी बात सुनो। असल बात ये है, मिर्जा साहब ने, बाबा गुरु नानक जो थे वो हिंदुओं से हुए थे मुसलमान, लेकिन उन्होंने शो नहीं किया मुसलमान। उनका जो शेर है, उनकी जो बातें हैं अपनी किताब में लिखी हैं, वो रसूल पाक का नाम हिंदुओं को बताया। ये देखो ये सब 5 नमाजें भी पढ़ते थे, मक्के मदीने भी गए, रोजे रखे, उनकी अपनी किताब से मैंने अभी कल ही पढ़े हैं, वो भी शेर वगैरह भी उनके जो थे ना, वो मिर्जा साहब की किताब में लिखे हुए हैं। हम साबित करते हैं कि ये जो है, जो बुद्धा थे वो भी हिंदुओं से ही थे, वो भी सीधे रास्ते लगाने आए। असल हाकम आदल क्यों आप इंतजार कर रहे हैं? जिसने भी आना है उसने बताना था ये तुम में ये गलती है, तुम में शियों में ये गलती है, बरेलवियों में ये गलती है, अहले हदीसों में ये गलती है, जो अहले कुरान है उनमें ये गलती है, उन्होंने बताना था। हाकम आदल वही थे। मिर्जा साहब अपनी तरफ से तो कोई बात लाए नहीं। अगर आपकी बातें वो सारी मान लेते फिर हाकम आदल किस लिए, फिर की जरूरत क्यों थी? 73 फिरके हो जाने थे, 72 गलती पे होने थे, एक सही होना था। इसीलिए आए थे कि जो आपके गलत अकायद हैं, गलत अकीदे हैं, जो आपने ये अल्लाह ताला सारी दुनिया का है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है, रसूल पाक रहमत लिल आलमीन है। वो अल्लाह ताला ये नहीं दे, सुलेमान फारसी के कंधे पे हाथ रख दिया भी अजमियों में से आएगा जो आना है, ये अरबियों में नहीं आया। और जब यहूदी इसलिए रसूल पाक को नहीं मानते, वो हम में से नहीं है, वो बनी इस्माइल से है, वो आना था हम में से, इसहाक की तरफ से आना था। तो ये बातें नहीं करते। अल्लाह आलम है सो या जलो रसाला, तो अल्लाह कहता है मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ नबी बनाऊं, जहां चाहूँ। हाँ जी, ओ कोई झूठा नहीं बजता, नहीं तो कुरान जी पे टाइम हो गया। आपके बड़े कहते हैं रसूल पाक की सच्चाई की लो तकबला वाली आयत ही पेश करते हैं, ईसाइयों के आगे तकबला वाली पढ़ते हैं। आपके भी जितने बड़े हैं, 30 सेकंड रहते हैं, अभी 30 सेकंड रहते हैं यार। आपके जितने बड़े हैं वो रसूल पाक को सच्चा करने के लिए सनाउल्लाह साहब, मोहम्मद साहब बटार, यही आयत लो तकबला वाली पेश करते थे। उनके भी बड़े, वो मिर्जा साहब की तारीफ भी उन्होंने बड़ी की है, जो ब्राइन अहमदिया की, इस जैसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जिसने इस्लाम के हक में ऐसे दलाइल दिए। जब दावा कर दिया तो फिर मुखालिफ हो गए। चलो टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा होगा। पहली बात तो ये है कि जो दावा मिर्जा साहब ने किया, उससे पहले ही मिर्जा साहब पर लोग इल्जाम लगा रहे थे कि आपने मिर्जा साहब हमारी किताबों के पैसे खाकर हड़प कर दिए हैं। दावा तो मिर्जा साहब ने कब किया? कोई साल बताएंगे किस साल मिर्जा साहब ने दावा करने से बहुत पहले लोगों का पैसा 10,000 रुपया ब्राइन अहमदिया के नाम पर लोगों से लिया था, वही नहीं वापस दिया, ना किताबें दी ना पैसा दिया। इसलिए लोग खिलाफ नहीं हुए कि मिर्जा साहब ने दावा कर दिया, इसलिए लोग खिलाफ हुए कि मिर्जा साहब का किरदार अच्छा नहीं था और लोग मिर्जा साहब के किरदार से मुतमिन नहीं थे। लेकिन बाकी बातें फिर देख लें आप, कुरान करीम की आयतें पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ वेद की, गीता की कोई पंथी पढ़ के सुनाओ और लोगों को बताओ कि देखो ये कृष्ण अवतार आ गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नाम पर, ये कृष्ण अवतार है, ये तुम्हारी वेद में जिक्र है, ये तुम्हारी गीता में जिक्र है, देखो इसने आना था दोबारा। उस हवाले से जितना ये कुरान के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, ये उनकी किताबें क्यों नहीं पढ़ते? या तो मऊद कुल अदियान होने का दावा छोड़ दो, लेकिन अगर मऊद कुल अदियान होने का दावा करते हो तो जिस तरह बिहाई जाके दूसरी कौमों में तबलीग करते हैं, इस्लाम से उन्होंने नजर पीछे कर ली है और वो सारी कौमों को अपने मजहब की तरफ बुला रहे हैं। आप भी इस्लाम से नजर हटा लें, मुस्लिम उम्मत से लैदा हो जाएं, मुसलमानों से लैदा होकर जाके दूसरे मज़ाहब को, उनके काबरीन को बुलाएं, उनकी किताबें टटोलें, उनमें से निकाल कर दावा पेश करें। नहीं करते। जो अमा मिली तो कहाँ मिली तेरे जुर्म खाना खराब को, मेरे उफ़्वे बंदा नवाज में। अगर आपको अमा मिली है नबी पाक की उम्मत में
اگر آپ کو نقصان کرنے کے لیے ملا ہے نبی پاک کا دین ملا ہے, اگر آپ کو کھیلنے کے لیے ملا ہے اللہ کا قرآن ملا ہے. اللہ سے ڈر جائیں, قرآن کریم کے ساتھ یہ ہیرا پھیری چھوڑ کے دوسرے کہاں لکھا ہو مہاتما بدھ جو آیا تھا وہ بھی ہندوؤں میں سے آیا تھا. اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے گرو نانک کے بارے میں کہ وہ جناب مسلمان تھے, کر لیے ثابت, سکھوں کے سامنے بیٹھ کے کر لیے ثابت کہ گرو نانک مسلمان. بھائی چپ کریں, بیچ میں نہ بولیں. ٹائم ہو گیا. او بھائی ان کو پکڑ کے رکھیں. میر بھائی یہ سارے بولنا شروع ہو گئے یار بیچ میں. ٹائم ہو گیا. وہ ٹائم ہو گیا تو ٹائم سمیر کو کہو نا. بول لو. میں کہتا ہوں کہ گرو نانک کا مسلمان ہونا ثابت کر لیا سکھوں پر. کتنے سکھوں کو آپ نے قائل کیا کہ گرو نانک مسلمان تھا؟ وہ تو ڈنڈا لے کے آپ کے سر میں ماریں گے اگر آپ کہیں. ادھر براڈیں لگائی تھی نا, گرو نانک کی فوٹو لگا کے اوپر رحمت اللہ علیہ لکھا تھا نا. انہوں نے وہ ماں بہن کی آپ کو گالیاں دی تھی کہ رے نام سائندہ. گرو نانک کو جا کے ثابت کرو سکھوں کے پاس. اور یار ان کو چپ کراؤ. سمیر بھائی کو نیچے اتار دو یار. یہ نہیں, ان کی چھترول جب ہوتی ہے یہ سارے چیخے مارتے ہیں. ان کا جھوٹ کا جو پلندہ ہے جب میں کھول کے رکھتا ہوں وہ سارے گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں. بھابی کی چترول ہونی ہے تو بکواس کر رہا ہے. اچھا لڑ پینا ہوں آپ گالا کٹی میں میر صاحب یہ گالیاں دے گا مجھے. اچھا اب چپ کر کے سننا. بات ہو گیا گالیاں دینے. نہیں بھی کوئی گالی ہماری طرف سے کوئی سخت لفظ نہیں بولا ہے بھائی. تو آپ بھی کہہ دو اپنے بندوں کو, آپ کی طرف سے بھی کوئی سخت لفظ نہ بولے. کہہ دو کوئی مسلمان مائک نہیں کھول رہا. علی چپ. ہمارے بھی کوئی احمدی مسلمان, آپ کے بندے اس لیے مائک کھول رہے ہیں ان کو پتا لگ رہا ہے چھترول ہو رہی ہے. ابھی تمہارا دجل گیا, اس نے مائک کھولا کہ نہیں علی نے؟ مدائیوں کی چھترول ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی میری باری ہے. ابھی کرو بھی سارے. احمدی مسلمان بھی صبر کرے, آپ بھی دوسرے مسلمان بھی صبر کرے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ اپنے بھائیوں سے کہیں صبر کی درخواست ہے آپ سے. جزاک اللہ جزاک. اپنے بھائیوں سے صبر کی درخواست کریں. ہمارے تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی سنت رسول پہ عمل کریں. قرآن مجید میں ہے کہ تم مشرکوں کے جو بڑا ہے نا. سنت مہاتما بدھ کیوں نہیں پیش کرتے؟ مہاتما بدھ بھی وہی ہے. اور میری بات سنو, من قریۃ الا خلاف نذیر قرآن مجید میں ہے. ہر نبی ہر بستی میں میں نے نبی بھیجے, اور مہاتما بدھ بھی ان میں سے ہی ہے. اور 1,24,000 میں سے وہ بھی ہے. آپ کو پتا ہے 1,24,000 میں وہ نہیں ہے. وہ کہہ سکتا ہے جس کو لاوی ہوتی ہے اللہ بتائے ہے کہ نہیں ہے. اور مرزا صاحب نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے. 30 سال تک ان کی اتنی لاوی ہوتے رہے ہیں. شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس طرح خدا میرے ساتھ کلام نہیں کرتا. قرآن جی میں لکھا ہے لطقول باز کا بھی, اگر ایک بھی بات جھوٹی میری طرح منسوخ کی میں اشارہ کاٹ دینی ہے. تو مرزا صاحب سچے تھے, اسی لیے بچے. کیا آپ نے کم زور لگایا؟ آپ کے بڑوں نے پورا زور لگایا. ہر طرح کا مقدمے میں کیے, قتل کرنے کی بھی کوشش کی, ہر طرح. آپ دیکھ لو کتنی برادیں اب بھی لگ رہی ہیں. وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لے اگلے بننا ماننا رسولی قرآن جیز میں ہے, میں اور میرے رسول ہی غالب آتے ہیں. جھوٹا لطقول باز کبھی, یہ 2 آیات پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کوئی ایک دنیا میں دکھا دو جب سے دنیا بنی ہے ایک جھوٹا بچہ ہو. اگر بچہ ہے تو دکھاؤ. اس کے علاوہ وہی اس نے خود دعویٰ کیا ہو, اس کی کتاب دکھاؤ جس طرح مرزا صاحب کی ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے, ایسے جھوٹ ہے. اس نے دعویٰ کر دیا نبی کا, اس نے کر دیا. وہ سامنے مسلمہ کذاب بچہ نہیں بچا. اسی طرح اگر مرزا صاحب نعوذ باللہ غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کے لیے سب ایک جیسے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بےعزت ہونی ہے, اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کا وہ میرے نام, اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام, اس کی باپ کا نام میرا نام, وہ میری قبر میں دفن ہوگا. وہ سب کچھ آپ مانتے ہو. پتہ نہیں رسول پاک سچا نہیں ہونے دیتے. وہ چاند سے گرہن بھی لگ گیا, اور رسول پاک کے وعدے 14ویں صدی میں آ گئے. انہوں نے بتا دیا. یا اور کوئی دکھاؤ 14ویں صدی کا مجدد کا ہے, 13 صدیوں کا مجدد ہے آپ کے پاس. ٹائم ہو گیا آپ کا. اچھا اوکے میرا بھی شیخ صاحب آپ کے بندے بے چین ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب سے کچھ بن نہیں پڑ رہا. شیخ صاحب چپ رہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے ساتھ ہر روز اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا, اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن اللہ تعالیٰ مرزا صاحب سے کلام نہیں کرتا تھا.
वो कलाम लोगों के सामने क्यों नहीं पेश करते? जो कलाम अल्लाह ताला मिर्जा साहब से करता था वो लिखा हुआ है ना मिर्जा साहब ने, 3 उस्तरे इतर की शीशी, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, पट्टी पुट्टी गई है, चलो लाहौर हम में एक बात बेशरम है। आ जाओ इसमें ये बातमीज, वो कलाम है, वो ये कलाम है, और जवाब कोई नहीं गांधी बोल इसमें रहा कौन सी बातमीजी का लफ्ज है? इस तरह अखलाक से बात करते हैं। और शेख साहब ये बातमीजी कहाँ से आ गई है? कोई हवाला लगाओ, शेख साहब, हवाला लगाओ। शेख साहब कलाम है, कलाम है, और शेख साहब और शेख साहब ये कलाम है, वो रसूल पाक कलाम है। हमारे हैं, हम और शेख हमारे साहब कलाम रसूल तो सुन पाक लो हैं, अपना। हमारे मिर्जा साहब हैं, और दोनों हमारे सुन हैं। लो। और की हो गया शेख साहब? शेख आप साहब, गाला अपनी ना बात करो करो ना यार, गाला एक ना मिनट करो। चुप करो, मेरी बात हवाला लगा के जो बात मैंने करो। गाली दी है, मेरी बात सुने, जो मैंने गाली दी है आप उस पे हाथ रखे, मैं माफी मांगूंगा। हाथ जोड़ के कैमरा अभी आपने झूठ बोले हैं जो 3-4 एक मिनट ठहर जी, एक मिनट और ठहर। दिखाओ कहाँ ये लिखा है। जितने मैंने अल्फाज बोले हैं इनमें से एक भी आप बताएं अगर मैंने पेश ना किया तो अच्छा, जरा से निकाल- अखलाक सुन से तो ले। बात करो, मेरी अखलाक से बात, आपने आगे चलो। नहीं तो खुदा मेरी अभी बात नहीं अगर बोले। करनी है तो अखलाक से बात कर लो। चुप तो करे ना, ओ भाई चुप चलो तो करे। करो। शेख साहब हो क्या गया है? ओके आपको करो। किसने आपको कह दिया है कि दौड़ जाए यहाँ से, आपसे बात नहीं बन रही? किसी ने आपको फोन कर दिया है? शेख साहब हौसला करें, मैंने कोई लफ्ज गाली वाला निकाला हो, कोई तौहीन की हो? आपने खुद कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन मिर्जा साहब से अल्लाह ताला कलाम नहीं करता था। वो कलाम जो अल्लाह ताला मिर्जा साहब से करता था उसके बारे में मिर्जा साहब कहते हैं मैं इस पर ऐसे ही ईमान लाया हूं जैसे कुरान पर, तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर ईमान लाया हूं। वो कलाम मैंने पेश किया, आप कहते गालियां देने लग पड़ा है, बदतमीजी शुरू हो गई है, तो इन हो गया। वो कलाम यही है, 3 उस्तरे इतर की शीशी, वो यही है, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, वो यही है, लाहौर में एक बेशर्म रहता है, वो यही है कि इस कुत्ते का आखिरी दम है, वो यही है ना, पट्टी पुट्टी गई है, वो यही कलाम है ना, 25 35 चलो, 36 39 50। ये कलाम आप लोगों के सामने सुन तो लें। 2 बकरियां ज़िबा हो गई, 2 पुल टूट गए, भाई ये वो कलाम जो लोगों के हदीसें सामने हैं पेश बुखारी करें, की, वो लोगों सुन को सकते पता हैं आप। चले ना। ओ ठहर तो जाओ, वो ओ ठहर फिर तो जाओ। आप फिर शेख साहब रो टाइम- पड़ते हैं। ओ शेख साहब मेरे वो- टाइम नहीं दिया, अपने टाइम में बात करना। और फिर बात करो शेख साहब अपने टाइम में बात करना ना यार, क्यों हो गया? चलो करो, कोई सलीके वाली बात कर लो कोई। अच्छा ये सलीका नहीं है, ये बद सलीका कलाम है, ये गालियां हैं, ये नहीं बदतमीजी वाला कलाम है। कोई सवाल कर लो, कोई वो सवाल ही कर रहा हूँ, कोई ये नबी कलाम मोहम्मदी मैं नहीं ये आए, सवाल कर रहा हूँ, सुन ले सवाल सुन ले, सवाल सुन ले। 14वीं सदी का मुजद्दिद कहाँ है? ओ भाई एक ही सवाल है शेख साहब, एक ही सवाल है एक फिक्रे का। जो कलाम मैंने अभी पढ़ के सुनाया है, जिसको सुनकर आपकी हालत गैर हो गई है, इसको क्यों नहीं सुनाते? ये हमारे सामने चलो पेश करो। अगर हिंदुओं के सामने नहीं पेश कर सकते, कृष्ण अवतार का दावा नहीं पेश कर सकते, सिखों के सामने, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पैरोकारों के नहीं, हमारे ही खत्ते पढ़ना है, तो हमारे सामने ये कलाम क्यों नहीं पेश करते जो मैंने अभी पढ़ा है? ठीक अच्छा है, अपनी गली कलाम। सुनो फिर। समीर साहब 1-2 मिनट हमें भी दें, इतना ये बोले तो सबको 1-2 मिनट दें। वो मैंने जो आप करते हैं ना, गलत करते हैं, वो हमने बताना इसका मतलब क्या है, इसकी बात क्या है, सामने लगा के असल बात की तरफ आओ। 14वीं सदी का मुजद्दिद कहाँ है? 15वीं सदी का मुजद्दिद कहाँ है? जो आया नहीं, रसूल पाक की हदीस है, हर सदी के सर पे मुजद्दिद आएगा। तो मैंने जैसे किसी ईसाई गंदा था, उसके दिमागों में गूं बना होता है, नौज बिल्ला, लाम कुल वल्लाहु अहद जो है ना, लाम यलिद व लाम यूलद, ये लिद लद, मगर तुम्हारा तुम चूड़ खाने यूनिवर्सिटी का पढ़िया, तेनू लिद लद ही नजर आनी है। वो असल जो मुखालफ होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। अकल वाले जो बात होते हैं, ये साबित करो नबी आ सकता है नहीं, और नबी खत्म नबूवत पे बात करो, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कि मुर्दा है, वो मैंने हमने करने हैं। जो मिर्जा साहब के वो साई ने तो लिद लद ही करना है ना, हमने बताना इसका मतलब ये है अल्लाह की तारीफ हो रही है, कोई उन पे एतराज आता है, उन्होंने खुदा दूसरा बनाया हुआ है, और साथ आप शामिल हो गए बनाने में। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे, परिंदे पैदा करते थे, जिंदा आसमान पर बैठे, रसूल पाक फौत हो गए, और रसूल पाक कह रहे कुल सुभान रब्बी इल्ला बशर रसूल, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो आपने ऊपर चढ़ा दिया। ये पर रिजवान साहब आए, ये भी बात अब मुझे बात कर लेने दें।
मुझे बात कर लेने, फिर जिसने बात करनी है और रिजवान साहब हो या इमरान साहब हो वो बाद में बात करें। वो हमारी करेगा, मैं फिर बंद करता हूँ। एक मजाहियों की तरफ से, एक मुसलमानों की तरफ से एक ही बंदे ने बात करनी है ना। नहीं नजीर साहब कोई और मुझे जवाब दे लेने दो, जवाब देना कि नहीं है? चुप करो ना, चुप करो ना, चुप तो करो इरफान साहब। नहीं ऐसी बात नहीं, आपने पहली टर्न ली थी। चुप करो जट साहब, बात सुनो। रिजवान साहब को बात करने दे। रिजवान साहब अब नए दोनों बंदे ले लें। हाँ करते हैं, नए बंदे। मैं फिर नया बंदा बुला लेता हूँ। फिर एक मिनट मुझे आपकी बात का आखिरी जवाब दे लेने दो। नजीर को म्यूट करो यार, आखिरी बात का मुझे यार, ये क्यों चीखें निकल गई इनकी? इनका कलाम जैसे ही मैंने पढ़ा है ऐसे ही। ओ ठहर तो जाओ यार, चुप तो। वो कलाम आपने ईसाइयों की तरह पढ़ा है ना। कोई ओ ठहर जाओ शेख साहब, आपकी बारी खत्म हो गई, आपने टाइम ले लिया, मेरी बारी है ना। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कोई एक भी लफ्ज अपने पास से नहीं बोला, ना कोई मैंने गाली दी है। आपने तो किसी का नाम लेकर कुरान की आयत की तौहीन करने की कोशिश की है। मैंने तो कोई तौहीन नहीं की, मैंने तो कोई लफ्ज भी नहीं अपने पास से बोला। मैंने कहा कि ये जो कलाम मिर्जा साहब पर नाजिल होता था, 3 उस्तरे इतर की शीशी और वल्ला वल्ला सिद्धा होया ओला और पट्टी पुट्टी गई है और लाहौर में एक बेशर्म रहता है और इस कुत्ते का आखिरी दम है। ये जो कलाम है, 2 बकरियां ज़िबा हो गई, 2 पुल टूट गए, ये कलाम आप लोगों के सामने क्यों नहीं पेश करते? जब आप कहते हैं कि ये वो कलाम है जो हर रोज मिर्जा साहब से किया जाता था, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन कलाम नहीं किया जाता था। तो ये कलाम खुद आप पढ़ के सुनाएं, इसका मतलब भी खुद बयान करें। मैं कब कह रहा हूं कि मैं इसका कोई गलत मैनी निकालूं या इसका तमस्कर उड़ाऊं? आप बयान करें इसको और बताएं कि इसका ये मतलब है, इसकी ये सच्चाई है, इसकी ये शान है, इसकी ये शौकत है। आप इसको बयान करें। लेकिन आपके तो सामने कलाम पढ़ा तो आपकी चीजें निकल गई, आपने गालियां देनी शोर शुरू कर दिया है। बहुत अफसोस है। इसका मतलब ये है कि ये कलाम इलाही नहीं है। आपको पता लग गया है कि ये सारा जो कुछ है ये सिर्फ और सिर्फ वो खुद साख्ता एक कलाम था। ये कलाम इलाही इस तरह का हो ही नहीं सकता। मतलब लाहौर में एक बेशर्म रहता है, ये कलाम हो सकता है पेट फट गया, ये कलाम इलाही है? मातम कदा कलाम इलाही है? मतलब जहन्नम में गिराया जाएगा, ये कलाम इलाही है? तो ये सारा जो कुछ आपके मेरा तो टाइम ओ चुप कर जा, ओ चुप कर जा, मारना जाए यार, मेरी बारी है। चुप कर, मारना जाए, तेरा टाइम हो गया। मिर्जाइयां नहीं बचना अपना कलाम सुन के। सबर करो। मिर्जाइयों का कलाम पेश किया, मिर्जाई ने शोर ओ गाल सुनो, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत कलाम मिर्जा साहब पर नाजिल होने वाला खूबसूरत कलाम। ये रिजवान साहब बात करेंगे, रिजवान साहब बात करें। कलाम है ना, तो तभी चीखें निकल रही हैं तुम्हारी। मना लोगों को क्यों कर रहे हैं अहमदियत में दाखिल होने से? मर जाओ भाभिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सिर्फ मुझे ना 1-2 मिनट दें। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, ना ही किसी को कोई गालियां ऐसा करना। मैंने सिर्फ इतनी बात करनी है कि आजकल के दौर में कोई भी बंदा इतना सीधा नहीं है कि उसको रोटी को चोची कहता हो। ठीक है, जो मुसलमान है या अहमदी मुसलमान है, जिसका कोई भी, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी है, जब उसके सामने आप तबलीग करते हैं अपने मजहब की, तो वो उसको समझ के उस मजहब को कबूल करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि जो हम लोगों को, अहमदियों को या मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि आप गीता की से क्यों नहीं पढ़ते, गीता की तालीम क्यों नहीं पेश करते, तो यही कानूनों में भी नाफिज होता है। एज ए मुसलमानों का फर्ज नहीं है कि वो जाके हिंदुओं को तबलीग करें। वो सारा दिन इधर अहमदियों के पीछे बोलते रहते हैं। तो यही सेम कानून उनको भी अपने ऊपर लागू करना चाहिए कि वो भी एक आधा जो है किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को, वो सेम अपनी जो है आयत पेश करके वो भी उनको मुसलमान करें कि सारा दिन सिर्फ अहमदियों के खिलाफ ही बोलना है। पहली बात। दूसरा है कि जितना खिलाफत पे या मुखालफत पे आप टाइम जाया करते हैं, वही किसी को तबलीग करें तो अल्लाह के रास्ते पे आगे। किसी को टारगेट करने की बात नहीं है। बात यही है कि कोई भी बंदा इतना सीधा नहीं है कि हम मुसलमानों को कहें कि ये हमारी बुक्स हैं, हमारा ये तलीम है, हमारा ये कीदा है, तो वो इतने सीधे हैं कि वो झूठे कीदे पे अमल कर लेंगे। जो भी बंदा अहमदियत में शामिल होता है वो समझ के होता है। तो आप भी लोगों को समझा के मुसलमान वापस कर लें। जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। ओके, अब जी आप बात करें। आप इन्होंने 2 बातें की हैं, इनकी दोनों बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। बारी नहीं है, अमर साहब थल्ले बैठे बंदे, बारी नहीं, इनको मना करें। नहीं, नजीर साहब का बारी है, नजीर साहब को बोलने दो। मेरी बारी है भाई, आपके बंदे ने बात कर ली। बात ये है कि ये कहते हैं कि भाई आप मुसलमान भी जाके उनको क्यों नहीं ये पढ़ के सुनाते। पहली बात तो ये कि हम में से किसी ने ये दावा ही नहीं किया कि वो मऊद कुल अदियान है। आपके मिर्जा साहब का दावा है कि वो मऊद कुल अदियान है।
हिंदुओं के लिए कृष्ण है, मसीहियों के लिए मसीह हैं, ईसा हैं, यसु हैं, और मुसलमानों के लिए इमाम महदी हैं, और जय सिंह बहादुर सिखों के लिए, और पता नहीं सब के लिए। वो कहते हैं सारे मज़हब के लिए मैं ही हूँ, सब के लिए मैं हूँ। आपका ये दावा था, इसलिए हमने कहा कि इस दावे के होते हुए आपको सिर्फ मुसलमानों के खत्ते पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? आप क्यों मुसलमानों की तालीम से और कुरान से और हदीस से ऐसी हेराफेरियां करते हैं? अल्लाह से डरें। दीगर अदियान, दीगर अक़वाम दुनिया में मौजूद हैं, उनको जाके तबलीग करें, उनके सामने वेद पढ़ के निकाल कर दिखाएं कि कृष्ण उतार के आने का जिक्र कहाँ लिखा हुआ है, और उसकी निशानियां अगर आप पर पूरी उतरती हैं तो बतौर कृष्ण के आप उनके सामने खड़े हों। आप मुसलमानों के खत्ते क्यों पड़े हुए हैं? बाकी बात यह है कि यहाँ से कोई भी बंदा आपकी तरफ जा नहीं रहा, उल्टी गिनती आपकी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले लोग काफी गुमराह हुए थे, अब अल्लाह ताला मेहरबानी कर रहा है, सोशल मीडिया की वजह से तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। आपका दीन सबको पता चल गया कि इसके अंदर ये कलाम है। अभी मैंने कलाम पढ़ा है, आपकी चीखें निकल गई हैं, तो उस ऐसे कलाम को कौन फॉलो करेगा? कुरान करीम एक ऐसा कलाम है जिसको फॉलो करने के लिए लोग गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये जो मैंने कलाम पढ़ा, इसको सुनकर आपके अपने बंदों की चीखें निकल जाती हैं। वल्ला वल्ला सिद्धा होया वल्ला, पट्टी टूटी गई है, शर्म रहता है। टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। और कलाम तो सुन लो, सलमान रुश्दी की बातें ओ इल्हामी कलाम तो सुन लो। गांधी बोल रहा है, गांधी इल्हामी कलाम तो आपके सुन लो। पास कुछ हो रहा है ही नहीं। असल बात ये है कुरान ओए अपना इल्हामी कलाम तो सुन लो और मर्जाइयो। रसूल पाक सबके लिए आए थे, रसूल पाक सारी दुनिया के लिए आए थे। ये सारे चुप करें। अपना कलाम क्यों नहीं सुन एक रहे एक हो? बोले, एक मिनट अब मेरी बारी है। ये चुप कर, मारना चाहिए। कलाम रोजाना की बुनियाद पर मिर्जा साहब पर नाजल होता रहा है। वो मुखालिफ जो है ना, मुखालिफ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ हर रोज ये ऐसा कलाम ही है, नाज़िल होता, हर रोज एक- मिर्जा एक- साहब एक- बातें एक- करता था। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ये बातें पेश करो ना। ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਸਮਿल्ला अगर मिर्जा साहब ने लिखा तो सिर रखा दे। अब मिर्जा साहब ने लिखा चुम के इन्हों मत्थे ते लाओ, ये चीका मार दो। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ पट्टी पुट्टी गई है, बुरा कलाम है। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੱਟ ਦੇ वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, कोई बुरा कलाम है? ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਟ ਕੇ लाहौर में एक बेशर्म रहना बुरा कलाम है? ਉਹ ਮੈਨੂੰ इस कुत्ते का आखिरी दाम है भैड़ा कलाम है। चाहिए गालियां करने दे अमर नज़ीर। गालियां देने लग पड़ा बात करने दे यार, गालियां देने लग पड़ा है। मैं मर्जाई गालियां दे रहे हैं मुझे अब कलाम सुन के। अमर नजीर साहब मुझे पट के रखने दे, जरा बात सुने। आपने अभी फरमाया कि मिर्जा साहब ने कहा कि मैं कुल अदियान की तरफ जो है मऊद बन के आया हूँ, और हमारा ऐसा दावा नहीं है। सबसे पहली बात, आपको अपने दीन का पता ही कोई नहीं है। हजूर नबी पाक ने फरमाया था कि मैं तमाम बनी नौ इंसान का नबी हूँ, बनी नौ इंसान के लिए नबी हूँ, और मेरे उलमा जो है वो अंबिया बनी इसराइल की तरह है। यानी उलमा का काम तबलीग करना है, वो सिर्फ जमात अहमदिया का काम नहीं है कि इस्लाम फैलाएं। आपका भी ये फ़र्ज़ है, लेकिन तो एक जो है ना, आप लोगों को आसान टारगेट जमात अहमदिया मिली हुई है, आपने उस पर हमलावर होना है। और जो कलाम आपने पढ़ के सुनाए हैं ना, आपने लामहला उनकी तबीरें भी पढ़ी होंगी। हमने यहाँ पढ़ी ना, तो यहाँ बहुत सौ की चीखें निकल जाएंगी और पेंटें जो है ना वो भी गीली हो जाएंगी। हमें पता है जो बातें आप करते हैं ना कि इस कुत्ते का आखिरी दम है, वो आपको भी पता है कि किस पर लगती है, और हमें भी पता है। हम मसलतन जो है ना खामोश रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम डरते हैं किसी से। ये बातें आपको सारी चीजों को पता है। टाइम हो गया, आपने एक टाइम हो मिनट गया। टाइम कितना हो गया? तुम 2 घंटे बोले टाइम लगाया हुआ है। समीर साहब ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਨਜ਼ੀਰ। यार ये गालियां देंगे, सुनना नहीं चाहते। ओए चुप करे। तारक साहब है, मैं कोई यहो जी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जेड़ा तोड़ा भरा नहीं, इस्तेमाल मैं करता है। जब तहजीब से बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैंने कोई ऐसी नाजायज बात भी नहीं की। ना आपने बहुत सारी नाजायज बातें की। कौन सी? मुझे बताएं, मैं माफी मांग लेता हूँ तारक साहब आपसे। बताएं कौन सी मैं ना नाजायज बात? माफिया मंगाना है ना मंगना कौन सी है। बात की है? बात तो बता दें।
नहीं कौन सी बात आपने है जायज? तमस्कर उड़ाया ना, मिर्जा साहब के इल्हामात का तमस्कर उड़ाया ना, कि ऐदा ना कौन सा मसलन कैसे तमस्कर कैसे उठाया? नहीं, आपका जब आपका ये इस कलाम से कोई तल्लक ही नहीं है तो आप पढ़ के तो उस पर तमस्कर उड़ा रहे हैं कि इस तरह का कलाम अल्लाह का नहीं होता। किस तरह का? मैंने कब कहा इस तरह का नहीं होता? मैंने तो कहा ये कलाम अगर अल्लाह का है तो इसको पढ़ के सुनाओ लोगों को। बहरहाल आप बात खत्म करें, मैं बात सुनाते हैं ना भाई साहब, सुनाते हैं, क्या हो गया? यार इसको चुप करा लो। और समीर भाई एक गाली दे रहा है, एक का टाइम भी खत्म हो रहा है। झूठ बोल। भाई इसको इरफान को चुप कराएं, क्या तारक साहब बोल नहीं सकते, थते हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जो ये बात की है ना कि हमारा ये दावा है, हमारा तो हुजूर नबी पाक के बारे में भी यही दावा है कि वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए नबी। ये होगी बात, इसको दोहराना है। तो सुन ली आपने मैंने बात। आपने एक एक बार ये जो इल्हाम आपने पढ़ के सुनाए, ये 5 दफा कम से कम आपने सुनाए हैं यहाँ पे। ये छठी मिर्जा दफा- मसरूर छठी दफा। साहब तमाम बनी नौ इंसान के लिए आए हैं। ज़बान जो है मिर्जा मसरूर साहब तमाम बनी नौ इंसान के लिए आए हैं। तारक साहब दी एनु जंबे नु चुप करो। जमीर साहब ए मुंह च सौदा दवा तारक साहब को भी मौका देना चाहिए। तारक चौहान साहब भाई चुप करें, चुप करें। मौका दे, सारे से गल्ला करने, चुप करके सुनो। यार ये थानेदार ज्यादा है, थानेदार ज्यादा है, मुजरिम थोड़े हैं, चोर थोड़े हैं, थानेदार ज्यादा। नहीं, अब मैं फाइनल बात करने लगा हूँ। आपने तारक चौहान साहब को पूछे मिर्जा मसरूर साहब तमाम दुनिया के लिए और हैं। ठहर जाए और खादिम हुसैन साहब जोसेफ मसीह को भी बुला लें और जितने आपके जिंदे हैं ना उन सबको बुला लें। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं मिर्जा मसरूर साहब तमाम दुनिया के लिए। मैं तुम आपकी बात ही नहीं की, मैंने तो हुजूर नबी पाक की बात की है ना, मैंने मिर्जा साहब की है ना। अच्छा, तो मिर्जा मसरूर साहब किन लोगों के लिए आए हैं? ओ यार चुप कर जा तू, गल करन दे। समीर ये साहब जो ने मना बंद करो। कमरे में बैठ के खलीफा बनाया है, ये समीर कहाँ से साहब आया? इन्हें बंद करो, जब्बे दे मुंह विच सौदा दवो, चुप करे। अंडे बेचने वाले चुप कर। चुप करो, ठीक है। नहीं, ये तो हुण जड़ा ना सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ ही टाइम है तो यार। नहीं नहीं तारक साहब मिर्जाइयों मेरी को तरफ गाली दी जाए तो समीर साहब हालांकि मेरा समीर टाइम, मेरी साहब बारी है, ना एक मिनट काटो सारे बोले मिर्जाइयों। रे। समीर तारक साहब साहब। चुप करे कुत्तिया। और समीर साहब एक मिनट मेरी बारी है। मिर्जाइयों यार, ये गालियां दे रहा है। भाई नहीं, नहीं, गाली कोई बंदा नहीं देगा। समीर साहब मानने वाले मसरूर हाँ, गाली दोगे तो तुम्हारे अकाबिरीन को गाली देंगे वो। समीर साहब बात मैं मसरूर को बोलूंगा, मसरूर को ये इरफान जज को गालियां निकालने के लिए रखा हुआ मिर्जाई को। अच्छा, गाली निकालेगा तारक साहब, मैं मिर्जा मसरूर को बोलूंगा। देखें ये अपने खलीफा को कुत्ता कहता है। गालियां दे रहा है नीचे। खलीफा समीर कहता है साहब ना मेरी गालियां अच्छा मुझे तारक साहब की बात का जवाब देने दें जरा, सारे चुप मेरी करें। बारी कहाँ गई यार? 2 मिनट के लिए चुप कर दे। 2 समीर मिनट। साहब मैंने एक बात तारक सिर्फ साहब की आपसे बात का करनी जवाब है दें। तारक कि साहब मैंने हुजूर नबी एक पाक मिनट का दे। नाम लिया है कि वो सारी दुनिया के लिए हाँ मैं तमाम- उसका जवाब देने लगा हूँ ना, एक मैं देने मिनट लगा यार, हूँ। लेकिन मेरी एक गल हुण तारक चौहान साहब दे मुतलक है कि मैं ते हुजूर नबी पाक दा नाम लिया है ते ये उन्हां दे मुकाबले च खलीफा साहब नु ले आए ने। अच्छा मैं साहब का यहाँ वो जिक्र अपनी बात का खुद जवाब देंगे। मैं मुझे आपकी बात नहीं, का जब जवाब मैंने साहब मुझसे तमाम मुखालफत दुनिया ही के नहीं लिए हुआ तो वो मेरे साथ क्यों हो रहे हैं? मैं होना ही नहीं चाहता कि मैं अरे कौन है ये पागल है क्या है यार तुम? ये थानेदार ज्यादा है, चोर थोड़े हैं, थानेदार ज्यादा, पकड़ने वाले ज्यादा है, भागने वाले थोड़े। अच्छा बात सुने भाई, मुझे मौका देना बोलने आप 2 के लिए। मिनट- सबको 2-2 मिनट दे रहे हो। ओ म्यूट करो भाई, 2 चलो, मिनट ठीक है, ये इरफान भाई को बोलने देते इस बार। हाँ मेरी बारी है। समीर साहब देखें, सबसे जितने भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल खुदा अल्लाह ताला की जात है, जिसने उस बंदे के बारे में लिखा हुआ है कि वहाबियों को खुदा लवातत कराता है। समीर साहब ये देखें इस बंदे ने क्यों लिखा हुआ है। मेरी आवाज आ रही है समीर साहब? जी जी। हाँ, वो फतावा रिजविया जिल्द 15 सफा 546 पे लिखा हुआ है कि अहमद रजा बरेलवी साहब फरमाते हैं वहाबियों टाइम हो गया समीर भाई, टाइम हो गया, इनका आप जवाब लेकिन देंगे। सूरन दा सूर ते मिर्जा मसरूर है। सूरन दा सूर मिर्जा मसरूर। करने दो मैं इसका जवाब दूंगा। बात नहीं करने दे रहे समीर साहब। नहीं नहीं, तो देखो फिर मैं बात इसका कर दी आपने, बात आपकी बात आ गई सामने, ठीक है। हमने उस टॉपिक देखो बात कह के कौन सा खत्म नबूवत समीर का भाई, टॉपिक इसने चल रहा है जो तुम ये इधर खोल जवाब के तो बैठे देंगे ना, हुए अमर हो? भाई। ये तो गालियां दे रहे हैं हरामी। वो गाली अगर किसी ने ये मिर्जा मसरूर का हरामी बोल रहा है ये। नीचे तारक चौहान आया हुए गालियां दे रहा है, आप हमें सूरन दा सूर मिर्जा मसरूर। मसरूर ना पढ़ो। मसरूर का सूर मिर्जा मसरूर। चुप करो। नीचे उतार नीचे दो। रखो। अगर किसी ने इनके अकाबरीन की गुस्ताखी की हाँ तो पहले इरफान नीचे बोल रहा है ना यार समीर हमें भाई, वो गालियां दे रहे हैं। बोलें तारक साहब को। कोई नहीं, बात नहीं। देखो अगर आपने भी इरफान साहब गाली दी उनको तो आप भी नीचे जाओगे।
उनको लें तारक साहब को दोबारा, क्यों तारक साहब को लें, क्यों लें तारक साहब को? चुप कर। उनको ले सकते हैं तो तारक को भी लें। अच्छा भाई मुझे बात करने दे, इनकी बात आ गई तो अब मेरा टाइम है या नहीं है? मेरे तो 30 सेकंड अभी पूरा मिनट 2 रहते हैं, तो मुझे पढ़ने दे वाला, मैं पढ़ूंगा तो फिर आप पढ़ो। नहीं, आप नजीर भाई बात करेंगे। जी नजीर भाई बात करें। बात यह है कि जो तारक साहब ने पहले बात कही है ना, नबी पाक सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, बिल्कुल ठीक। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लेकिन आपके मिर्जा साहब कहते हैं मैं भी सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ। वो कहते हैं कि मुझ पर भी अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल किया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो ये तो आपने तो नबी पाक की हर बात को, हर इज्जत को, हर शर्फ को छीनने की कोशिश की। अल्लाह आपसे निपटे। लेकिन मैंने वो बात जो कही थी वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के लिए हैं, ये ठीक है। लेकिन नबी पाक का ये दावा नहीं है कि मैं उनका मऊद हूँ, उनकी किताबों में लिखा हुआ हूँ, हिंदुओं की किताबों में, फलाने की किताब में। मऊद कुल अदियान का दावा नबी पाक ने कभी नहीं किया। ये आपके मिर्जा साहब का दावा था कि हिंदुओं के लिए मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाइयों के लिए मैं मसीह हूँ, मुसलमानों के लिए मैं महदी हूँ। तो इन दोनों बातों में फर्क है। उनका दावा आपके मिर्जा साहब का कुछ और है। अब रही बात वो कलाम की, तो मैं हैरान होता हूँ कि तारक साहब आप कहते हैं कि हम किसी मसलहत की वजह से उस कलाम को लेकर खामोश हैं, और खामोश भी हैं और मुझे लगता है कि शर्मिंदा भी हैं। वो कलाम आप लोगों के सामने ना खुद पेश कर सकते हैं जो मिर्जा साहब लिख कर गए हैं, जो कहते हैं कि खुदा ने मुझ पर ये नाजिल किया है, बल्ला बल्ला सीधा होया ओला, लाहौर में एक बेशर्म रहता है, पट्टी पुट्टी गई है, इस कुत्ते का आखिरी दम है, कुत्ता है कुत्ते की अदद पर मरेगा। ये बातें ना सिर्फ आप किसी मसलहत के तहत खामोश हैं, आप इसको बयान नहीं कर सकते, बल्कि वो ऐसा कलाम है कि अगर कोई और बंदा आपके सामने पढ़ के सुनाए आपकी चीखें निकल जाती हैं। ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये कलाम जिसको सुनकर लोगों को खुश होना चाहिए कि ये इलाही कलाम है, कलाम इलाही है, इसके बजाय आप शर्मिंदा होते हैं और गुस्से में आते हैं, पेचोताब खाते हैं। गुस्से में आकर आपने मुझे गालियां देनी, आपके भाइयों ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी कि ये गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, तमस्कुर उड़ा रहा है। हालांकि मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये कलाम जो आपके मिर्जा साहब का कहते हैं कि मुझे खुदा ने मेरे पर नाजिल किया है, और अब्दुल शेख साहब कह रहे थे कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन मिर्जा साहब पर वो कलाम नहीं नाजिल होता था या मिर्जा साहब से अल्लाह ताला कलाम नहीं करता था। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था। तो मैंने ये कहा कि भाई उस कलाम को लोगों के सामने पेश क्यों नहीं करते? हिम्मत करो उस कलाम को मेरी बात, शायद ही कोई दिन ऐसा, शायद ही कोई दिन, हाँ शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन एक एक दिन लेकर, मसलन आज 18 जनवरी है, तो 18 जनवरी को मिर्जा साहब पर जो कलाम नाजिल हुआ है, आप 18 जनवरी का कोई इल्हाम पेश करो कि भाई मिर्जा साहब पर 18 जनवरी को ये कलाम नाजिल हुआ। अच्छा मैं बात करता हूँ, अब मेरी बारी है कि चौहान साहब करेंगे? पता नहीं, आप तो अभी आए हैं। चौहान साहब को तो नीचे उतर, चौहान साहब को ले लें भाई वापस। नहीं, कौन कर रहा था आगे बात इनसे? चौहान साहब को ले लेंगे। चलो मैं करता हूँ उतनी देर अब मेरी बारी है। समीर भाई एक मिनट, समीर भाई नीचे इमरान काला उसको उठा लें जरा, कोई अली अहमद को नीचे उतारें, उसको उठाएं। चलो इमरान कालू को ले लो, बेशक मैं नीचे, बेशक मुझे नीचे डालते हैं। इनसे बन नहीं पड़ रहा, इनसे बन नहीं पड़ रहा, कोई और बंदा बुलाओ, कोई और बंदा बुलाओ, इनका गुजारा नहीं हो रहा। असल बात पता है, इनकी हालत गैर हो गई है, फलाने को बुलाओ, फलाने को ले लो, फलाने। ठीक है, ये देखो अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला का भरोसा है, अल्लाह ताला का भरोसा है, तो अल्लाह ताला कलाम जी की बात सुन लो। यही बात मूसा अलैहिस्सलाम का जो बारे जब फिरौन ने की ना, मैंने इसको कुरान जी में लिखी है। वहां एक बंदा बैठा था मूसा अलैहिस्सलाम मानने वाला, उसने कहा फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम कुछ ना को, अगर ये झूठे हैं तो अल्लाह खुद मारेगा, अगर ये सच्चा हो तो फिर तुम पे प्रॉब्लम पड़ेगी। तो यही एक नसीहत है आपकी, अगर मिर्जा साहब गलत है तो अल्लाह खुद खत्म करेगा, अगर सच्चे हैं तो आप पे प्रॉब्लम आएगी। वो आई हुई है, तो देख लो, आप 150 साल हो गया है, क्या हालत हो गई है, नीचे नीचे काम जा रहा है। अली बोला, समीर साहब ये अली टोक रहा है, ये और लोत कबला वाली जो आयत है, और ये आयत मूसा अलैहिस्सलाम वाली,
فرعون والے فرعون ایک منٹ کو سمجھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، اور موسیٰ علیہ السلام کچھ نہ کو، اگر یہ جھوٹا ہوا تو اللہ خود مارے گا، اگر یہ سچا ہوا تو تم پہ مصیبتیں آئیں گی۔ اور یہ بات اور دوسری لو تقولا والی بات، اسے خود سمجھ جاؤ، عقل سے کام لو۔ اور تم سے اللہ تعالیٰ سے بڑے تو نہیں نا تم، اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیوٹی ہے، جو بھی جھوٹا نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا ہے، جو سچا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، لے اگلے بنا ورنہ رسولی، جو جھوٹا ہوتا ہے اللہ تقولا والی چلتی ہے، وہ ایک بھی نہیں بچا۔ ایسے جو سے مرضی کہتے جاؤ، اصل بات کی طرف آؤ، جو تمہاری غلطیاں ہیں ان کو مانو، مرزا صاحب پہ مان لاؤ۔ اصل بات یہ ہے، مرزا صاحب پہ نہیں مان لانا، رسول پاک پہ لانا ہے۔ اس رسول پاک نے کہا تھا میرا سلام کہنا اس کو جب وہ آئے، خواہ تمہیں برف کے تودوں سے چل کے جانا ہو، اس کا نام میرا نام، اور رسول پاک ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، وہ جس نے آنا ہے اس نے رسول پاک کا پیغام اشاعت کرنی ساری دنیا میں۔ تکمیل دین رسول پاک کے ذریعے ہو گیا، تکمیل اشاعت بعثت ثانی و آخرین منہم کے ذریعے ہونا تھا، ہو رہا ہے۔ 150 سال ہو گیا، 150 ابھی پڑا ہے، 3 ہو گیا۔ ٹائم ہو گیا شیخ صاحب۔ اوکے 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 اب